I think now I should start. Yes? Okay. Sai Prasad, what for sorry? It's okay, just relax. Oh my God. It means again you want me to tell me the story. Then when we will complete our lesson number 3, it will just every day requires such a big motivational story. In the class, we will continue like this way only. Every day I'll just come and visit whenever if any teacher is absent. So definitely I'll tell you the story. I'm having a number of motivational stories. Okay, no problem. If I am giving you the motivational stories, are you following it? You can chat. Okay, no problem. Today, just 2 lines I want to say. As Swarnam is already informed everything, that a sophisticated Marathi language, I don't know what she explained in Marathi regarding the Maharashtra Day. Today we are celebrating 1st May as Maharashtra Day and Kamgar Divas also. So I just request all of you that always be proud of our state, and every year we have to celebrate in a nice way. But because of this coronavirus, we are helpless. No problem. But then also, I wish you all of you Maharashtra Day. Okay. Now I'll just start our lesson. Yes. Okay. Story. Okay. So now you see, this is a story for you only. I'm just starting. If you feel like giving up, sometimes it happens with all. If you just feel like giving up, sometimes what happens now, we'll just feel fed up of our life also. Then we just take hard decisions and we'll just see, okay, now you have to just leave it. You even don't show interest in anything. So this is actually a story of that students, you can say, persons, you can say, no problem. A man planted a fern and bamboo seeds. Fern means it is a plant of long stems with thin leaves but no flowers. Those trees are called fern. So he actually planted fern and bamboo seeds and cared for them really well. He made sure that both got adequate light and water. Okay, the man was delighted to see the fern quickly spring out from the earth and grow really fast, covering its entire surrounding with its bright green color. But he was disappointed when he saw nothing come out from the bamboo seed. But the man did not give up on the bamboo. Okay. In the second year, he saw that the growth of the fern was lubricant, vibrant, and abundant, and the bamboo seed, nothing came out. Okay. Still, but the man continued caring for the bamboo and did not quit. In the third year, there was still nothing from the bamboo seed, and the man still could not give up. In the fourth year, once again he saw nothing come from the bamboo seed, but the man pursued and still would not quit. It was in the fifth year that the man saw a tiny sprout. Tiny sprout means, you know, sprouts little bit comes from a seed. Okay, first stage of that a seed we can say. Okay, but that too on a fifth year. Okay, sprout emerged from the earth. The bamboo sprout was tiny and insignificant compared to the fern. Okay, but it was just 6 months from the bamboo shoot up.
to over 100 feet tall. The man reacts. The bamboo had spent those many days, those many years growing its root. It was those roots that made it strong and gave it all what it needed to survive through the growing. Isn't it true that life does not give us a second chance, that they cannot handle if there is a challenge that you are facing at the moment? Know for sure that you answer that all the time you have spent dealing with your time, and you have spent dealing with your challenges and struggles, you have actually been growing roots just on the just on the ground, just on the ground of those roots. The man did not give up on the bamboo. So here, never you just quit. Don't compare yourself to others. The bamboo and the fern are so different, yet both make the forest beautiful, each one serving a different purpose. Relax. Your time will come. Even you will can win your race. As high as your potential, as high you can go. Okay, not someone else. Understood? What I'm going to say is be patient and keep working on yourself. One day you will just shoot up like a bamboo tree. Remember that the London is 5 hours ahead of New York, but that doesn't make that New York is slow and London is fast. Everything in life happens at the right time. Be patient and the right time will come for you as well. Don't hurry and don't worry. You are neither early nor you are too late. You are just on time, because even your time also will definitely come. This only I want to tell you in this story, that never quit and never give up. Always you just do practicing every day. Here we say practice makes a man perfect. Yes, unless and until you just practice, go on day by day, definitely you will reach your target. So this I want to explain you in my story. And here what the man did, those who just planted seeds, he was just waiting for a bamboo plant to come out for 5 years. He did not give up. He didn't quit. So this is the thing I want to say. It happens with each and every human being. Okay. This I shared in a story. What I want to exactly tell you is, you can think it's a motivational story or something else. No problem. But you have to. You have to. Okay. Now we will just start our lesson and we'll just continue our next paragraph. Yesterday we finished our first paragraph. Now we will just start with a second paragraph. Just give me a second of time to share my screen. Okay. Even you can just read this lesson. So our lesson name is Wahare Hamdard. Yesterday I informed each and everything, meaning also. I think better you understood whatever I am explaining you. Yes or not? Okay. Don't put the markings. Yes. Now first paragraph was done. Second paragraph I read but didn't explain you. Don't mark anything on the pages, please. So second paragraph I'll just read. आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया. इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे. आंख खुलते ही उनके चेहरों पे उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई.
उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? ओके, सो जैसी वो अपने आप को देखता है, जैसी उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक बिस्तर पर पड़ा था। इर्द गिर्द मीन्स आस पास कुछ परिचित, कुछ नोन पर्सन, परिचित मीन्स कुछ नोन पर्सन, अपरिचित चेहरे खड़े थे। अपरिचित मीन्स जिनको वो जानता नहीं है, अपरिचित चेहरे जिनको उस ऑथर ने पहली बार देखा। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई। उत्सुकता मीन्स ईगरनेस, कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। एक उसमें लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कराहते मीन्स ऐसा हिचकिचाते हुए जिसको बोलते हैं ना, वैसे उसने अपने आप से पूछा। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। किसी ने, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा कि आप सार्वजनिक मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट इन अ प्राइवेट वार्ड। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एक प्राइवेट रूम्स रहते हैं और जनरल वार्ड भी रहता है। जो जनरल वार्ड रहता है वो सार्वजनिक रहता है, मीन्स सबके लिए ओपन बेड्स रहते हैं। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सेपरेट रूम्स भी रहते हैं, बट इट चार्जेस हाई, लिटिल बिट हाई कंपेरेटिवली टू द जनरल वार्ड्स। ओके, जनरल वार्ड से ज्यादा। मेरा वॉइस आ रहा है आप सब लोगों को क्लियर? किसने मैसेज किया है कि ही इज नॉट गेटिंग माई वॉइस? Okay, no problem. If you are unable to listen me, I'll just send you the recordings, because here range is proper. Maybe this is because of some net problem. So yes, rest all are getting my voice clear. So let me continue. तो वहां पे पाया उसने, अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया था। किसी ने उनसे कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पैर का फ्रैक्चर हो गया है, मीन्स पैर टूट गया है, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है और बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा आपको और कुछ नहीं हुआ है, तो आप डरो मत। ऐसा वहां जो हॉस्पिटल में जो भी लोग मौजूद थे वो उनसे कह रहे हैं। ओके, एक एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। मैंने ये पूरा पैराग्राफ रीड किया ताकि मैं आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो जैसे ही वो ऑथर उठता है और उसने अपने आसपास कुछ नोन, कुछ अननोन पर्सन्स को देखा और तब उनसे उसने पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो शायद वो बेहोश हो गया और उसी बेहोशी की हालत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि कुछ जानते हुए लोग, कुछ जो उसको जानते थे, कुछ जो नहीं, वो नहीं जानता था, ऐसे लोग उसके आसपास खड़े थे और इसने उन लोगों से सवाल किया कि मैं कहाँ पे हूँ। तो उसने जवाब दिया, लोगों ने जवाब दिया कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में हो और आपका फ्रैक्चर हुआ है, आप घबराइए नहीं, सिर्फ आपकी एक टांग टूट गई है। लेकिन यहाँ पे वो देखता, मतलब वो उस आदमियों से जब सुनता था वो जवाब, तो उसे ऐसा लगा कि जैसा कि ये बस मेरे होश आने तक ही रुका वाला था, कि कब इस आदमी को होश आएगा और मैं उसे
उसके जो सवाल रहेंगे उसका जवाब दूंगा। मतलब इतनी अच्छाई के साथ में वो आदमी उसको जवाब दे रहा था। तो ऑथर को ऐसा लग रहा था कि ये मेरे होश में आने तक का ही वेट कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके उसके क्वेश्चंस का जवाब तो मिल गया। तब उसने अपनी टांगों की ओर मुड़ना शुरू किया और देखना शुरू किया। तो उसने देखा कि उसका एक पैर ठीक तरह के था, जैसा रहता है वैसा ही था, बट दूसरा पैर जो था, जैसी फ्रैक्चर होता है किसी का भी, तो पैर जो रहता है उसे हम लोग ज्यादा मूवमेंट ना करें, जो फ्रैक्चर्ड लेग रहता है उसे बांध दिया जाता है ताकि हमारा पैर जो है कांस्टेंट रहे, ताकि जो हड्डी टूटी हुई है वो जुड़ने में जल्दी से सफल हो जाए। उस चीज के लिए उसको एक मतलब एक गनी बैग में पूरा सैंड भरते हैं, रेती मतलब एक सैंड का पूरा एक गनी बैग भर के और उसको उस लेग के साथ में हैंग कर दिया जाता है ताकि हमारा मूवमेंट पैर का एक ही जगह रहे उस वेट के हिसाब से। आप अगर ये ऑर्थोपेडिशियंस के कुछ पिक्चर्स लेके आएंगे ना, तो आपको उसमें नेट के थ्रू से निकल जाएगा और यू कैन सी इट। आप वो पिक्चर्स देख सकते हो कि कैसे ये अगर किसी का एक्सीडेंट होता है पैर का तो किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब उसका ऑपरेशन तो हो जाता है और प्लास्टर भी हो जाता है। प्लास्टर वगैरह सब हो जाने के बाद में उस टांग को ऐसा बांध के रखा जाता है ताकि उसकी मूवमेंट ना रहे और हड्डी जुड़ने में, पैर का फ्रैक्चर ठीक होने में जल्दी से काम आ जाए। तो उसने जब देखा कि उसकी एक टांग जो सही सलामत थी वो अच्छे से पड़ी है और दूसरी टांग को एक रेत की थैली के सहारे स्टैंड पे लटका दिया जाता है, उसके दिमाग में एक नया मुहावरा मीन्स एक नया प्रोवर्ब आता है कि टांग का टूटना तो सिर्फ एक सार्वजनिक अस्पताल के कुछ दिन रहने के हिसाब से था। सार्वजनिक मतलब पहले ही वो जो भाषण सुन के आ रहा था वो पूंजीवादी और समाजवादी को कंपेयर कर रहा था, वो उन्हीं ख्यालों में जा रहा था। और वो जब साइकिल भी चला रहा था तो उसका कंसंट्रेशन उसकी साइकिल पे और रोड पे नहीं था। तभी उसने सामने से आई एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद में अपने आप को उसने हॉस्पिटल में पाया। तो वो एक मुहावरा यानी उसके दिमाग में एक प्रवर्ब जन्म हुआ, मतलब याद आया उसको कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। क्यों? क्योंकि बट नेचुरल है कि आज हमारा ऑपरेशन हो गया और हम तुरंत घर डिस्चार्ज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारी मूवमेंट अच्छी नहीं होती है तब तक हमको हॉस्पिटल में रहना ही पड़ता है। तो उसके दिमाग में ये क्लिक हुआ कि मेरी टांग का टूटना और मुझे इस सार्वजनिक हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए रहना कंपलसरी हो गया है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही सबको, चाहे वो ऑथर है, सबको सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही सबको डर लगने लगता है। बिकॉज हमको उतनी सारी, आज हम हर एक फैसिलिटी के एक एडिक्ट हो गए हैं कि कुछ भी हम लोगों से ना एडजस्ट नहीं होता है। बट व्हेन वी विल जस्ट एडमिटेड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं ऑल फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। कुछ चीजों को हम लोगों को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। पहले चीज तो ये रहता है कि एक डर्टी स्मेल आने लगता है और हम जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहता है क्योंकि उनके चार्जेस इतने ज्यादा रहते हैं कि हर कोई बेयर नहीं कर पाता है। बट जो बेयर करते हैं, जो नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो एक स्टिंकिंग स्मेल आते रहती है। क्योंकि वहां पे चार्जेस किसी से बहुत नॉर्मल पे लिया जाता है, तो उतना फॉलो अप नहीं होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वैसे ही मतलब ऑथर कह रहा है कि गवर्नमेंट सार्वजनिक अस्पताल का अपने ब्रेन में एक ख्याल आते ही इंसान कांप उठता है, मतलब सोच में पड़ जाता है बाप रे, ऐसा पहले तो शब्द यही निकल जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे टीबी वगैरह या एड्स वगैरह की, ये हॉस्पिटल्स प्राइवेट भी नहीं लेते हैं, इनको गवर्नमेंट में ही जाना पड़ता है। देन वी जस्ट रियलाइज व्हाट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट्स विथ अस
कभी भी भगवान करे कभी भी ऐसी बीमारियों के साथ किसी को भी ना फेस करना पड़े, बट कभी ऐसे किसी के साथ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं तो रियलाइजेशन बिल्कुल आ जाता है कि सार्वजनिक अस्पताल कैसे होते हैं। इसीलिए आजकल तो आज के माहौल में तो हम लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल से भी डर लग गया है, तो बट नेचुरल है कि ऑथर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कितना डर लगने लगा हो। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। हम लोग कहावतें भी कहते हैं कि भगवान हर किसी को अस्पताल का दरवाजा ना दिखाए, यही चीज होती है। तो वो भी यही सोच रहा था कि खतरनाक हॉस्पिटल एक शब्द ही, एक वर्ड ही डेंजरस है, खतरनाक होता है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। मीन्स हम लोग एक अपने दिमाग में डाल ही देते हैं कि हम लोग अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं तो सोचते हैं कि हमको बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर मिलेगा, हमारी ट्रीटमेंट अच्छी होगी, वी विल गेट टाइम टू टाइम आवर मेडिसिन, मतलब हम हर एक चीज सुविधा जो हमको चाहिए, फैसिलिटी जो चाहिए वो हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी वेल ट्रेन्ड, जिनकी बहुत सालों से प्रैक्टिस रहती है वही रहते हैं, बट दे विल कम इन टाइम टू टाइम व्हेनेवर दे आर हैविंग देयर ड्यूटी। वो अपने टाइम से ही आएंगे और आपको एक राउंड आके देख के चेक करके अपने असिस्टेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके चले जाएंगे। बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैसा रहता है, अगर हमको थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है तो हम लोग तुरंत नर्सेस वगैरह को कॉल करके बोलते हैं कि हमको ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है। बट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज नो वन विल गेट। तो उसको ऑथर यहाँ वही कंपेयर कर रहा है कि अगर हम सार्वजनिक शब्द अगर वापर रहे हैं तो मतलब हमारी आत्मा, जो हमारी सोल है, वो डायरेक्टली परमात्मा से मिल जाती है। मतलब हम अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ में सौंप देना चाहिए कि क्या हम ठीक हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बहुत ऐसा नहीं होता है कि हर बार अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो हमारा इलाज अच्छा नहीं होगा, हमारा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। ऐसे भी बहुत सारे जन हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ठीक होके आए हैं, बट ये हर एक की मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से भी ऑथर वही सोच रहा है और वही समझ रहा है। मैं आपको दोनों बातें बता रही हूँ, आप समझने के लिए समझ सकते हो। ऐसा नहीं होता कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो हमने डाल दिया कि बस अब हम ठीक होने ही वाले नहीं है और हम खत्म ही हो जाएंगे इस संसार से, मतलब परमात्मा से मिलना हमारा तय है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, तो हर एक चीज अच्छी होती है। ये भी तय नहीं है कि हम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो हम बस कंफर्म लिख लेंगे कि हम ठीक होके ही आएंगे। कल ऋषि कपूर जी का डेथ हो गया, परसों इरफान खान का डेथ हुआ। तो ये दोनों भी कैंसर पेशेंट्स थे। इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट अपने अमेरिका न्यूयॉर्क में भी करवाया, बट उनका डेथ हो गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उन्होंने तो अब्रॉड में हाई जहाँ पे मेडिसिन पूरा मेडिकल फैसिलिटीज है, उसके बाद भी तो वो लोग बच ना पाए ना। मरना सबके लिए तय है। अगर हमारी जिंदगी है, अगर हम जीवित हैं तो मरना भी हमारे साथ तय है, एक दिन सबको मरना ही है। बट ये कंपेयर नहीं है, मैं आपको उस मीनिंग को इसमें इस वजह से समझा रही हूँ कि हमको मरना तय है, लेकिन ये नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो हम बिल्कुल मरेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, हमारी जितनी लाइफ है उतनी रहेगी। बट हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट में और प्राइवेट की फैसिलिटीज में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा रही हूँ बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ऑथर को क्या फील हो रहा है वो मैं आपको समझा रही हूँ कि ऑथर को ये लग रहा है कि बस अगर सरकारी हॉस्पिटल अगर मैंने समझ लिया, सार्वजनिक जहाँ शब्द आ गया तो वहां मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आत्मा का मिलन अब बस परमात्मा के साथ होने ही वाला है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टांग का टूटना कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, मुझे सार्वजनिक हॉस्पिटल में भर्ती इस दुर्घटना के कारण
होना ही था, मुझे ये एक्सपीरियंस लेना ही था शायद कि सार्वजनिक हॉस्पिटल्स मींस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ये मेरे को एक्सपीरियंस लेना ही था। मुझे आज ऐसा लग रहा है, ये ऑथर कह रहे हैं, मेरा ये कोइंसिडेंस था, मेरी एक टांग का टूटना। इन दिस सेकंड पैराग्राफ ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू? आपको समझ में आ रहा है? You can show the thumb. Now we will come to a third paragraph. टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। वे मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। Yes, मैं यहाँ पैराग्राफ को ब्रेक कर रही हूँ एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ मींस दिस 3 लाइंस। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे, ऑथर कह रहे हैं कि टांग टूटने से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो मेरे लिए हमदर्दी जताने में जुटे हुए थे, जो मेरे से मिलने आए थे। कभी भी कोई भी हमारे नियर डियर वंस हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं तो हम भी उनसे मिलने जाते हैं, एक्सेप्ट दिस कोरोना केसेस। Yes, who's there? Except this corona cases, क्योंकि वहां हमें परमिशन नहीं है, so better take precautions। तो यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि मुझे फिक्र उन लोगों की हो रही थी जो मेरे लिए बेचारे इतने एफर्ट्स रख के और मेरे लिए मेरी हमदर्दी जताने के लिए वो मेरे से मिलने आ रहे थे, और मिलने जुलने वाले तो कई बार आने लगे, इतने ज्यादा आ रहे थे कि कभी कभी तो मैं खुद बहुत परेशान हो गया कि बाप रे, यहाँ मुझे एक्चुअली आराम करना चाहिए। ये सभी लोगों के साथ होता है, आई थिंक सो। और कभी कभी आप लोग भी सोचना ये स्टोरी के बाद में और प्रिकॉशंस लेना कि हम लोग अवॉइड करें थोड़ा सा कि पेशेंट को रेस्ट के लिए हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ना कि उसको इरिटेट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरा फैमिली चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए और वो ना चाहते हुए भी उसको एंटरटेन करना पड़ता है। फिर कभी कभी उसके घर वाले, पेशेंट तो चलो साइड रह गया, बट अगर पेशेंट के जो घर वाले रहते हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं बाप रे, अब हर एक को मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पेशेंट का टाइम टेबल भी टूट जाता है, उसको प्रॉपर खाना देना पड़ता है, मेडिसिन देना पड़ता है और हर एक चीज टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। बट हम लोग क्या करते हैं, हर थोड़ी देर में जाके कोई ना कोई हमारा कोई भी नियर डियर वन अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो हम लोग कोई टाइमिंग्स फॉलो नहीं करते हैं, हम हमारी टाइमिंग्स फॉलो करते हैं कि हाँ हम अब फ्री हैं तो अब हम चले जाएंगे। ये नहीं सोचते हैं कि इस समय पेशेंट को रेस्ट लेने का टाइम है, तो बेटर उसको हम नेग्लेक्ट करें, उसको रेस्ट करने दें, उसको डिस्टर्ब ना करें, ये ना सोचते हैं। बट यहाँ पे भी हम हमारा ही सोचते हैं कि हम कितने मतलब अपने टाइमिंग्स के हिसाब से, हाँ अब हम फ्री हो गए, हमारा सब काम हो गया, सब ओके है, तो चलो अब चलो किसी से मिलने आते, क्योंकि हमको मिलने जाना है, हमको हमारी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करना है और एक दिखाना भी है कि हम मिलने आए, भले अगला डिस्टर्ब होए तो होए, हमको उससे कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर भी वही कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा परेशानी तो ये हुई कि मुझे आराम मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि हर थोड़ी देर में कोई ना कोई मेरा हमदर्द बनके मेरे से बस पूछने आता जा रहा था, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। यस, जो कि ऑथर कह रहे हैं कि ये एक टाइम जो रहता है हर एक के लिए, टोटली बेड रेस्ट बोलते हैं ना जिसको, वो रहता है, बट हम वो तो उनका ना सोचते हुए उनको बस चले जाते हैं। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है और मुझे लग रहा है आप लोग सबके साथ भी हुआ होगा, आपके कोई नियर डियर वन होंगे। जस्ट रियलाइज दो सीन्स एंड थिंक अबाउट इट एंड कंपेयर योरसेल्फ दिस स्टोरी विद दैट, ओके, एंड मैच इट।
कि क्या आप लोगों ने भी ऐसा किया क्या। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जब इस समय बहुत खास जरूरत रहती है हमको रेस्ट करने की, तो वो रेस्ट तो होता नहीं है और आ जाते हैं। और जनरल वार्ड का जो रहता है, अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, बट ये एक प्राइवेट वार्ड में है, ये एक प्राइवेट वार्ड में है। तो कैसा होता है, जनरल वार्ड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जनरल वार्ड रहता है ना, उसमें ऐसा रहता है कि एक टाइम फिक्स रहता है। उसमें एक टाइम फिक्स कैसे किया जाता है कि आपको 2 बार, दिन में 2 ही बार मिलने दिया जाता है पेशेंट से। बट प्राइवेट वार्ड ऐसा रहता है कि आपका जब मन करे तब जाके आप पेशेंट को डिस्टर्ब कर सकते हो। उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहते, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहे या प्राइवेट हॉस्पिटल रहे, कोई भी एक फिक्स टाइम नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चार्जेस मिलते हैं और वो ये सोचते हैं कि when we are getting a huge amount, then why to disturb the others, let them carry on, let them do whatever they want to do। तो वो अब ऑथर यहाँ पे वही कह रहे हैं कि एक मेरा जो वार्ड है, ये प्राइवेट वार्ड है, कि प्राइवेट वार्ड का तो कोई समय ही नहीं रहता है कि कभी भी आओ कभी भी जाओ। जनरल वार्ड का तो भी कम से कम एक फिक्स रहता है, जनरल वार्ड का तो भी कम से कम फिक्स रहता है कि हाँ ये टाइम से ये टाइम पे आना है। तो उस समय हमारे जो नॉन पर्सन्स रहते हैं, जो परिचित लोग रहते हैं, परिचित रिश्तेदार मित्र, जो हमारे फ्रेंड्स, सभी जन आते हैं और आके मिलके चले जाते हैं। बट प्राइवेट वार्ड को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कभी भी आओ कभी भी चले जाओ, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। ओके, यहाँ पे ऑथर एकदम इतनी रियलिटी बता रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग जो प्राइवेट वार्ड में है ना, तो जो भी मेरे हमदर्द आते हैं मेरे से मिलने के लिए, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना बदला लेने आए हैं। जिनको भी, जो भी जाने अनजाने से मेरे से अगर कभी कुछ गलती हुई हो, तो वो लोग आज मेरे से वो बदला लेने आए हैं और यहाँ पे एक दिखा रहे हैं कि एक हम हमदर्दी, एक सहानुभूति बोलते हैं ना, कि हम जाके अगर गए हैं किसी से मिलने तो एक स्टैंप छोड़ते हैं कि हाँ हम मिलने गए बाबा, हमने फॉर्मेलिटी पूरा किया। बट ऑथर कह रहे हैं कि उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपनी इसमें दुश्मनी भी निकाल लेते हैं कि चलो चलते हैं, अब इसको इरिटेट करते हैं। हम डायरेक्टली तो उससे बदला ले नहीं सकते और दिखने वाले को लगेगा कि हम हमदर्दी के लिए गए हैं, बट हम तो हमारा बदला ही लेने गए हैं। जाके उसको इतना इरिटेट करते हैं कि वो बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऑलरेडी वो अपने पेन, क्योंकि कभी भी किसी को भी कुछ भी होता है, चाहे एक फीवर क्यों ना रहे, उसका दर्द उसी को समझता है। हाँ वो कहता जरूर है कि मुझे फीवर है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रेस्ट लेना है, मुझे थोड़ा सा पीसफुल माइंड रहना है। बट हम लोग क्या क्या करते हैं, डोंट टेक आउट दीज मार्किंग्स। तो उसमें क्या होता है, वो जो पेन होता है उसको ही सहना पड़ता है। तो यहाँ वो कह रहा है कि मेरी टांग तो पहले ही टूटी है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि टांग टूट गई, फ्रैक्चर हुआ, उसका ऑपरेशन हो गया, उसका सर्जरी हो गया, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ गया, तो उसको कोई पेन नहीं होता होगा? बहुत ज्यादा पेन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत ज्यादा पेन होता है। लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं सोचते, चले जाते हैं पेशेंट को रेगुलरली इरिटेट करने। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मतलब वो कंपेयर कर रहा है कि जैसे मिलने वाले लोग आ रहे थे तो बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरी शायद दूसरी टांग भी टूट गई, क्योंकि वो सुन सुन के बातें जवाब दे दे के लोगों के इतना परेशान हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसको कुछ भी अच्छा लगना नहीं लगा। उस ऑलरेडी उसकी एक टांग इतनी दर्द से भरी हुई थी और उसको वो सब लोगों को देखते हुए, उनका व्यवहार देखते हुए और उनके क्वेश्चन आंसर्स पूछते हुए, क्योंकि हर कोई जाता है ना, अरे आपका टांग टूट गया, कैसा टूट गया, हालांकि दिखता भी है, सबको दिखता है कि हाँ टांग टूट गई है, उसका फ्रैक्चर हुआ है, फिर भी हम लोग जाके यही पूछते हैं, हाँ आपकी टांग टूट गई है, कैसे टूट गई, कब हुआ,
क्यों हुआ? हमारे ब्रेन में जो हम क्वेश्चंस रहते हैं वो कंटिन्यू बस पूछते जाते हैं दिखने के बावजूद भी। ये एक मेंटालिटी है, ये एक टेंडेंसी है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी डजंट वांट टू चेंज आवरसेल्फ। तो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द पैराग्राफ दैट author is explaining. Next paragraph